ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں دھند نے فضائی آپریشن دھندلا دیا۔ ایئرپورٹ رات 10 بجے سے پروازوں کے لیے بند، حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ہو گیا۔ لاہور میں کئی روز کے بعد دوبارہ دھند کے سائے گہرے ہو گئے، جس سے پروازوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہوا۔ رات 10 بجے رن وے پر حد نگاہ 150 میٹر تک محدود ہو گئی، جس کے باعث ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ دبئی اور شارجہ سے آنے والی ایئر بلو کی پروازوں کا رخ اسلام آباد کی جانب موڑ دیا گیا۔ جدہ سے آنے والی سعودی ایئر کی 2 پروازیں 737 اور 738 منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شارجہ سے آنے والی PIA کی پرواز 185، مسقط سے آنے والی PIA کی پرواز 129 اور کراچی سے آنے والی PIA کی پرواز 307 منسوخ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب دھند نے موٹر وے کو بھی نو گو ایریا بنا دیا۔ رات 8 بجے M2 اور M3 موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دن کے اوقات میں M2 اور M3 موٹر وے صرف 8.5 گھنٹے کھلی رہی۔ موٹر وے حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موٹر وے پر اس وقت تازہ ترین دھند کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن خالد، ان سے مزید جانیں گے۔ حسن خالد، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، بات کروں دھند کی تو لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے، اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ 0 ہونے پر موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ M2 موٹر وے، M3 موٹر وے لاہور سے سمندری تک، M2 موٹر وے لاہور سے شیخوپورہ تک اور M11 موٹر وے لاہور سے سیالکوٹ تک عام ٹریفک کے لیے بند ہے، اور حد نگاہ اس وقت 0 ہے۔ بابو صابو انٹرچینج کے اوپر موٹر وے پولیس کی جانب سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ واپس شہر کی جانب موڑا جا رہا ہے، اور بیریئرز لگا کر اس وقت موٹر وے جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے بند ہے، اور موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ سفر کے دوران شہری جو ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اپنے سامنے والی گاڑی کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ اس سخت موسم کی وجہ سے ان کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب اگر بات کروں ایسٹرن بائی پاس کی تو ایسٹرن بائی پاس بھی شدید دھند کی وجہ سے محمود بوٹی سے کالا شاہ کاکو تک عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور شہر کے اندرونی علاقے بھی دھند کی وجہ سے شدید متاثر دکھائی دے رہے ہیں، خاص کر کے رائے ونڈ، سندر، مانگا منڈی اور اس سے مہلکہ جو علاقے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ، وہاں پر اس وقت دھند ہے، اور دھند کی وجہ سے سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں شہریوں کو کہ وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اوور سپیڈنگ سے گریز کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ حسن خالد ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سردی بڑھتے ہی گیس غائب ہو گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کا کم پریشر کی شکایات ہیں۔ رحمان پورہ کے مکینوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ پچھلے مہینے بھی بل 1900 روپیہ بل اتاریا۔ غریب بندے مزدوری کرنے والے ہیں، سارے کو نہیں پورا ہوندا، نہ سارے کو سلنڈر بھی نہیں بھرائے جاندے، ایڈے مہنگا ہو گیا سی تے اسی بہت مجبور ہوئے پے، بچے روٹی کھان تو بیٹھے ہوندے۔ مصطفیٰ کالونی چندرائی روڈ کا علاقہ ہے، یہاں پہ 2 مرلے کے گھر ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ سردی جیسے ہی آئی ہے گیس کی بالکل بندش ہو گئی ہے۔ جہاں پہ کوئی امیر ترین لوگ رہتے ہیں یا حکومتی سرکردہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ گیس دن رات 24 گھنٹے آتی ہے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ گیس کو پوری کی جائے، یہ تو بالکل مہنگائی کے خلاف پوری جنگ ہے، اہل محلہ کی بھی ہے، اور اس کو مزید ٹھیک کیا جائے۔ اسکول جانا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، کسی بھی کام پہ چلے جائیں، کھانا تو ناشتہ تو کرنا ہے، نہیں تو گیس آتی نہیں ہے، ہم چولہا جلا رہے ہیں، اس کے کچھ چیز اوپر ڈال رہے ہیں، یہ سلنڈر ہے اتنے مہنگے بڑھانے پڑتے ہیں۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے اساتذہ کی تنخواہیں مزدور سے بھی کم ہیں۔ محکمے کے 13,000 سے زائد اسکولوں میں تعینات اساتذہ کو صرف 8,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ 8,000 روپے مقرر ہے۔ اساتذہ کے احتجاج کے باعث محکمہ لٹریسی نے 1 سال قبل اساتذہ کی تنخواہوں میں صرف 500 روپے اضافہ کیا تھا۔ ان اسکول کے اساتذہ کی روزمرہ کی اجرت صرف 266 روپے مقرر ہے۔ محکمے کی نگرانی میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے غیر رسمی تعلیم دینے کی غرض سے 13,324 اسکولز قائم کیے گئے۔ ہر اسکول میں 1 استاد تعینات ہے۔ محکمہ لٹریسی کی غیر رسمی تعلیمی پالیسی کے تحت اساتذہ اردو، انگریزی، ریاضی، جنرل نالج، اسلامیات، سوشل سٹڈیز اور جنرل سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے کم از کم تنخواہ 18,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ LDA نے سگیاں روڈ منصوبے کو فاسٹ ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ فرموں کی پری کوالیفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ایک ہی روز میں ٹینڈر بھی جاری کر دیا۔ 19 جنوری کو بڈ ڈاکومنٹس جاری، 20 کو ٹینڈر اوپن کیا جائے گا۔
LTA इंजीनियरिंग 2 ने सगिया रोड मंसूबे को 2 पैकेजेस में तकसीम कर दिया है। पैकेज 1 में सगिया इंटरचेंज से फूल मंडी चौक तक का ट्रैक शामिल है। पैकेज 2 में फूल मंडी चौक से फैजपुर इंटरचेंज और दूसरी जानिब शेखुपुरा रोड शामिल हैं। दोनों पैकेज को माली तौर पर भी 1.5 अरब में तकसीम किया गया है। प्री क्वालिफाइड कंपनियां 19 तारीख तक टेंडर डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकती हैं। LTA मंसूबे के दोनों पैकेजेस का टेंडर 20 जनवरी को खोलेगा। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन ने 17 जनवरी को प्री बिड मीटिंग कॉल कर ली। LTA ने 7 तामीराती कंपनियों को आज ही प्री क्वालिफाई किया है। पंजाब पुलिस तीसरे क्वार्टर के 27.25 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए। IG पंजाब ने सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस को 4.5 अरब जारी किए हैं। CTO को 61 करोड़ के फंड्स दिए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से पंजाब पुलिस को तीसरे क्वार्टर के सिवा 27 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। रवा माली साल में अब तक पंजाब पुलिस को 1 अरब 3 अरब का बजट जारी किया जा चुका है। पहले क्वार्टर में 49 अरब, दूसरे क्वार्टर में 26.5 अरब दिए गए थे। महकमा पुलिस के लिए रवा माली साल में 1 अरब 28 अरब के बजट की मंजूरी। तीसरे क्वार्टर में जारी होने वाले फंड्स में 20% तनख्वाहों पर खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने 6 माह में रिंग रोड पर सफर करने वाले शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2.5 करोड़ रुपए वसूली की। दिसंबर और नवंबर में रिंग रोड अथॉरिटी ने 1 करोड़ से जायद के ट्रैफिक चालान किए। लाहौरियों से रिंग रोड पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान की वसूली का हदफ 11 करोड़ मुकर्रर किया गया। पंजाब हुकूमत ने अवाम से रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ 56 लाख रुपए वसूल किए। महकमा खजाना पंजाब के सिविल अकाउंट्स में बताया गया है कि रवा माली साल 2021-22 के बजट में इसका हदफ 11 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है। ये सिर्फ रिंग रोड पर ट्रैफिक जुर्मानों की मद में हदफ रखा गया है। तारीफ अदालत के जज वसीम अफजल ने होंडा गाड़ी का काम ठीक ना करने पर इमरान ऑटोमोबाइल क्रीम ब्लॉक मार्केट के मालिक के खिलाफ 2 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में शादमान के रिहायशी अमानुल्लाह ने इमरान ऑटोज एंड मोबाइल करीम मार्केट के खिलाफ हर जाने का दावा दायर किया। सारिफ ने मौकिफ इख्तियार किया कि इसने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए इमरान ऑटो वर्कशॉप में दी, जिसने खराब पुर्जे तब्दील करने के लिए 1,55,000 रुपए तलब किए। इस पर 1,20,000 की रकम एडवांस दे दी। जब गाड़ी दी तो पुर्जे जिनको तब्दील करने के लिए रकम ली गई थी तब्दील नहीं किए। दोबारा राब्ता किया लेकिन सुनवाई न हुई। दावे पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने वर्कशॉप के मालिक के खिलाफ 2 लाख रुपए की डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने वर्कशॉप के मालिक को 1,50,000 रुपए दरख्वास्त गुजार को फौरी अदा करने का हुक्म दिया। 3 माह से बंद नाज थिएटर को दोबारा से ड्रामों की नुमाइश के लिए खोल दिया गया। प्रोड्यूसर आबिद भट्टी के नए स्टेज ड्रामे इश्क मेरा ना का आगाज हो गया। ड्रामे की कास्ट में अदाकारा बिलोरानी, सुमेरा चौधरी, लकी डियर, रूप जट और दीगर फनकार शामिल हैं। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 माह से बंद थिएटर मिशन रोड पर ही वाक़या है नाज थिएटर। इसको जो है वो दोबारा से ड्रामों की नुमाइश के लिए जो है खोल दिया गया है और स्टेज ड्रामों के मारूफ प्रोड्यूसर आबिद भट्टी ने जो है वो इस थिएटर को जो है वो बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है और इसको जो है बाकायदा तौर पर नुमाइश के लिए खोल दिया गया है और वहाँ पर ड्रामे की नुमाइश का आगाज जो है वो कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। प्रोड्यूसर आबिद भट्टी के नए स्टेज ड्रामे इश्क मेरा ना का आगाज हो गया। ड्रामे की कास्ट में अदाकारा बिलोरानी, सुमेरा चौधरी, लकी डियर, रूप जट और दीगर फनकार शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। सूबाई इलेक्शन कमीशन गुलाम इस्तार खान ने नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स की हल्का बंदियों के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, पंजाब के तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, हल्का बंदी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स और कन्वीनियर हल्का बंदी कमेटी इजलास में शरीक हुए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब में हल्का बंदी के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अभी आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमुंतखब सदर इरफान इकबाल शेख के एजाज़ में इशाइया गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कसरे नूर शादी हॉल कैंट में मुनक़िदा तकरीब में कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा शाहजेब अकरम, मियाँ अंजुम निसार और अली हस्साम असगर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। शेख मोहम्मद आसिफ, मियाँ मिसबाउर रहमान, हाजी गुलाम अली, तनवीर अहमद शेख, शहबाज असलम, बाबू मोहम्मद बशीर और ख्वाजा जहांजेब अकरम ने भी शिरकत की। मियाँ अली मियाँ, शेख अनीस इकबाल, शाहिद कादिर, ब्रिगेडियर शफी गाजी, शेख मोहम्मद आबिद और हारिस अतीक ने भी शिरकत की। मोमिन मलिक, ताहिर मंजूर चौधरी और जफर महमूद भी मौजूद थे। इस मौके पर इरफान इकबाल शेख ने खिताब करते हुए कहा कि अपने ग्रुप के तमाम साथियों के अज़्म और वलवले पर उन्हें दाद देता हूँ।
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में सफाई ऑपरेशन और मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने शहर की मार्केट्स में सफाई से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल कमिश्नर ईमान अनवर कुदवाई, CEO LWMC राफे हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मॉनिटरिंग अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने शहर की मार्केट्स की सफाई के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने बाकायदा तौर पर एहसास लिबास स्टॉल का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग पनागाह में एहसास लिबास स्टॉल का इफ्तिताह किया। MLM गुलाम मुहय्यद्दीन दीवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया, इंचार्ज पनागाह सब्जी मंडी अमीना और दीगर अफसरान भी हमरा थे। लाहौर की पनागाहों दाता दरबार सब्जी और फल मंडी, जिना अस्पताल, रेलवे स्टेशन, ठोकर न्याज बेग और जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा में एहसास लिबास स्टॉल लगाए जा रहे हैं। हजरत बीबी पाक दामन के उर्स तकरीबात का आगाज। मज़ार को गुस्ल देकर चादर पोशी की तौसीई काम के बायस ज़ायरीन का दरबार में दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। हजरत बीबी पाक दामन के उर्स की तकरीबात का आगाज रस्म गुस्ल और चादर पोशी से हुआ। अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया गया। दरबार के तौसीई काम के बायस ज़ायरीन और अकीदतमंदों को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। मैनेजर दरबार गोहर मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़ायरीन को दाखिली रास्ते तक रसाई हासिल है, जहाँ से सलाम और चरागा किया जा सकेगा। तमीराती काम हो रहा है और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि तमीराती काम में किसी किस्म की हर्डल्स नहीं पेश आनी चाहिए, और इसके अलावा ज़ायरीन को अगर अंदर एक्सेस दे दी जाए तो किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उर्स की तकरीबात के दौरान दरबार बंद होने के बावजूद दूर दराज से ज़ायरीन हाजिरी के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। एशियन और नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप मियां मोहम्मद अरशद पहलवान की अहलिया और मियां फैसल अरशद एडवोकेट हाई कोर्ट की वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी में मुमताज़ मजहबी रहनुमा कारी जवार बहादुर, सैयद इदरीस जंजानी और हफीज़ मदनी ने शिरकत की। करम नगर मिस्री शाह में चहलम के मौके पर कुरान ख्वानी में अरशद अंसारी, बाबर अशरफ अंसारी, मोहसिन भाई, मलिक शेर गिल और मियां उस्मान भी शरीक हुए। शेख शाहिद, चौधरी आमिर सिद्दीक, चौधरी तलत महमूद, चौधरी शाहिद हुसैन और हाजी सगीर ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एहलकारों की जनरल परेड में डॉल्फिन फोर्स, एंटी रॉयड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, मुजाहिद स्क्वाड, लेडीज पुलिस, CIA इन्वेस्टिगेशन विंग और थाना जात के एहलकारों ने हिस्सा लिया। SP सिटी ट्रैफिक DSP शहजाद खान और DSP जुडिशल तारिक जफर ने नफरी के हमरा परेड में शिरकत की। जनरल परेड में पुलिस लाइन्स, डॉल्फिन फोर्स, एंटी रॉयड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, मुजाहिद स्क्वाड, लेडीज पुलिस, CIA इन्वेस्टिगेशन विंग और थाना जात के एहलकारों ने हिस्सा लिया। जनरल परेड में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया। SP सिटी ट्रैफिक मोहम्मद शहजाद का कहना था कि जनरल परेड का मकसद एहलकारों को अलर्ट रखना और उनमें डिसिप्लिन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। आमिर जैकब मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट जनरल कैटेगरी में इमरान राठौर और मलिक शबीर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे हैं टूर्नामेंट। जनरल कैटेगरी में इमरान राठौर और मलिक शबीर की जोड़ी ने आबिद महमूद और सुहेल महमूद की जोड़ी को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एग्जेक्टिव कैटेगरी में DG एंटी करप्शन गौहर नफीस अखी सरवर समेत DG बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ियां पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ताकत, चुस्ती और फुर्ती का खेल कबड्डी। पंजाब स्टेडियम में 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। पहले रोज रेलवे और आर्मी ने अपने मैचेस जीत लिए। अपने इलाके का जट्टा का पुत्र जिन्होंने जग्गा जट हैदर राजा हैदर, आओ देख राजा हैदर चल रही कि मेरी आजमा नहीं जीता। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मेला पंजाब स्टेडियम में सज गया। 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 टीमें शरीक हैं। सूबाई वजीर कानून और पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सदर राजा बशारत ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इनका कहना है कि हुकूमत खेल के फरोग के लिए भरपूर इकदाम करेगी। खेल के फरोग के लिए जहाँ पर बाकी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिया को हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि कम से
कम ये एक हमें जो एजाज़ हासिल है और जिस बात पर हम फख्र करते हैं वो हमारा फख्र कायम रहे। कबड्डी में खिलाड़ी के लिए ताकत के साथ चुस्ती, फुर्ती और चालाकी भी दरकार है। चैंपियनशिप के इफ्तिताई रोज रेलवेज और आर्मी ने अपने मैचेस जीत लिए। और सामने कहते विरका दा पुत्र लगा आदल विरक ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਰ ਵਿਰਕ। स्टार खिलाड़ी लाला उबैदुल्ला कंबो और कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना जट ने कबड्डी की रौनक बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 에ਅਰ ਚੀਫ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। जी बिल्कुल तैयारी भरपूर की है तो टाइटल का इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दिफा करेंगे हम। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप में रोजाना 6 मैचेस खेले जाएंगे जबकि फाइनल पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार मेहमान खुसूसी होंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। करशी यूनिवर्सिटी के नए तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के तलबा और तालिबात को असातिज़ा की जानिब से वाइट कोट पहनाकर खैर मकदम किया गया। करशी यूनिवर्सिटी तिब के शोबे में तालीम और तहकीक के मौके फराहम करती है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के नए तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। फर्स्ट ईयर के तलबा को फैकल्टी की जानिब से सफेद कोट पहनाया गया और हल्फ लिया गया। That I shall abide by the values of Karshi organization. वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी अब्दुल रशीद लून ने तलबा से कहा कि वो अपनी तमाम सलाहियतें तालीम और तहकीक में सर्व करें और बेहतरीन प्रोफेशनल बनकर आवाम की खिदमत करें। This is intended to provide students with well-defined guidelines regarding the expectations and responsibilities appropriate for the medical profession prior to their first day of class. तलबा को यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली तालीम से आगाही दी गई। फैकल्टी मेंबरान ने अपने तजुर्बात से तलबा को मुस्तफीद किया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। शहर का मौसम अबर आलूद और सर्द रहा। धुंधज़दा मौसम में भी लाहौरियों ने पार्क्स में फुर्सत के लम्हात गुजारे। शहर में आज सुबह से ही बादलों और धुंध का बसेरा रहा। सूरज की शुआएं फिजा में मोल। स्कूलों में छुट्टियों के बायस कई फैमिलीज ने पार्कों का रुख किया। बच्चों ने खेल कूद के दिन गुजारा। यहाँ पर हम खेल रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मैं अपने भाइयों के और फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पर हम बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। जो लोग मरी ना जा सके वो लाहौर के अब्र आलूद मौसम को ही मरी के मौसम की तरह एंजॉय करते रहे। ये 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई है, मरी का माहौल है, सेम उसी हिसाब से लाहौर वाला माहौल बना पड़ा है, सो एंजॉय हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत मामूल से ज्यादा रहेगी। कम से कम पारा 5 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम के बदलते तेवरों ने शहर लाहौर का मौसम खुशगवार कर दिया तो दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन राना अजहर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।